All right. So in the last session, we quickly revised what is specific heat capacity. So I will go through it once again, and then we will learn a new topic that is Myers relation. कोई उसको Myers relation भी बोलता है, but it is Myers relation anyways. तो specific heat capacity क्या होता है? You should know what is specific heat capacity. So in 11th standard, you have learned if you have certain amount of gas और अगर आपको उस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाना होगा तो यू विल हैव टू सप्लाई हीट. आप हीट सप्लाई करोगे. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन is called as specific heat capacity. राइट. तो जनरल डेफिनेशन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of certain amount of gas by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन is specific heat capacity. अब इसमें दो कैटेगरीज है एज आई टोल्ड यू. एक तो मोलार स्पेसिफिक हीट, एक प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. मोलार स्पेसिफिक हीट में आप बोलते हो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ओके, by 1 डिग्री सेल्सियस is called as molar specific heat. और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट में आप बोलते हो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. फिर हमने देखा था कि मोलार स्पेसिफिक हीट में भी दो टाइप थे. कौन से दो टाइप थे? एक था मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा था एट कांस्टेंट प्रेशर. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius at constant volume is molar specific heat at constant volume. Similarly, at constant pressure, and similarly, you define what is principal specific heat at constant volume and constant pressure. So definitions are not expected because that you were supposed to learn in 11th, you were supposed to know in 11th standard. But in any case, मैं आपको जनरल डेफिनेशन बता दूंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है आपको पता है. डेफिनेशन यू शुड नो. You should know definition. Okay. So the amount या फिर the amount of heat required, आप ऐसा भी बोल सकते हो, the amount of heat required to raise the temperature of certain amount of gas. क्योंकि मैं जनरल डेफिनेशन कर रहा हूं व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मैंने बोला नहीं ये मोलार है या प्रिंसिपल है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ऑफ सर्टन अमाउंट ऑफ गैस, ऑफ सर्टन अमाउंट ऑफ गैस by 1 degree Celsius is called as specific heat capacity. Specific heat capacity. Okay. Then of course you have molar specific heat capacity, you have principal heat capacity, and you have heat capacity at constant volume and constant pressure. तो मैं पहले constant volume और constant pressure का heat capacity define कर दूंगा. So let us define what is specific heat capacity at constant volume. Okay. So as I told you, these definitions are extras for you because it is just for your knowledge. So I will put that in notes. Okay. It is just for your knowledge. You should know this. So by definition, the amount of heat required to raise
the temperature of certain amount of gas, of certain amount of gas by 1 degree Celsius at constant volume, is known as is called as specific heat capacity at constant volume. Specific heat capacity at constant volume. Okay, so I'll just make a little bit of space to write it here. So at constant volume. Okay, so now similarly on the similar lines you can define what is specific heat capacity at constant pressure. तो आप एग्जैक्टली सेम लाइंस पे डिफाइन कर सकते हो, सिर्फ वॉल्यूम हटाना यहाँ से, जहां जहां वॉल्यूम दिख रहा है वहां वहां पे प्रेशर लिखो. सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. Okay, so you will say amount of heat required to raise the temperature of certain amount of gas by 1 degree Celsius at constant pressure. At constant pressure is called as specific heat capacity at constant pressure. At constant pressure. Okay. Now, as I told you, specific heat capacity can further be classified as molar and principal. अब उसको मैं डिफाइन नहीं करूंगा बिकॉज आपको सिर्फ यहाँ पे एक दोनों डेफिनेशन में आपको सिर्फ 2-3 वर्ड्स ऐड करने हैं. जैसे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 mole of gas. Okay, then you will say it is molar specific heat, right? तो क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू विल बी हैविंग? तो फॉर एग्जांपल अब हमको अगर मोलार स्पेसिफिक हीट डिफाइन करना है, तो स्पेसिफिक हीट मतलब हीट कैपेसिटी, तो यू कैन से मोलार स्पेसिफिक हीट या यू कैन से मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, अभी सर्टन अमाउंट की जगह पे आप बोलोगे 1 मोल ऑफ गैस, of 1 mole of gas by 1 degree Celsius at constant volume is known as, अब हम बोल देंगे इसको मोलार स्पेसिफिक हीट. ओके, सो वी विल से दिस इज मोलार स्पेसिफिक हीट. तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है सबका, इज नोन एज मोलार स्पेसिफिक हीट. और डिनोट करने के लिए यू डिनोटेड बाय, अब मोलार के लिए मैं कैपिटल सी यूज करूंगा, CV. Some books they use capital C for molar and small c for principal, लेकिन confusion होता है तो principal के लिए हम S यूज कर लेंगे. तो अब molar specific heat आपको पता है क्या होता है. I am doing all this thing because most of you do not have basics of 11th. तो मैं इसलिए एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ. आपको स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज इसके डेफिनेशन की जरूरत नहीं है 12th में. You do not need definitions, but you have to know what it is. So, molar specific heat at constant pressure. अगर ये नहीं समझेगा तो अगला रिलेशन नहीं समझेगा. इट इज वेरी सिंपल थिंग. ओके, तो अब कांस्टेंट प्रेशर के लिए वही चीज है, जहां जहां आपको कांस्टेंट वॉल्यूम दिखता है वहां वहां से कांस्टेंट वॉल्यूम हटाओ, वहां वहां पे कांस्टेंट प्रेशर लिखो. ओके, राइट. So this is how you define. So you say
the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas at constant pressure. At constant pressure is known as molar specific heat at constant pressure, Cp. Okay, so now अब आपको पता होना चाहिए what is principal specific heat. Okay, so what is principal specific heat? You should know. So principal specific heat is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of gas. यूनिट मास मतलब या तो 1 ग्राम होगा या 1 किलोग्राम होगा ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस by 1 degree Celsius at constant volume is known as principal specific heat at constant volume. Principal or denoted by SP. This is very important because you need to know what is principal specific heat. यहाँ पे सिर्फ जो अमाउंट ऑफ गैस है वो 1 ग्राम या 1 किलोग्राम है, so it is unit mass of gas. Okay, so similarly you will have principal specific heat at constant pressure. The amount of heat required to raise the temperature of unit mass of gas at constant pressure. No more constant volume now, constant pressure is known as principal specific heat at constant pressure. Okay, तो यहाँ पे I wrote SP, it should be SV. Okay, so this is a small correction. Amount of heat required, okay, that is right. So this is what it should be. और यहाँ पे आपको constant pressure लिखोगे, yes, at constant pressure. That's all you need to know. अब अगर आपको इतना पता है, so now we can talk about Myers relation, and this is very important. Here onwards ये रिलेशन हमको बहुत काम में आएगा टू फाइंड आउट Cp, और अगर Cp मिल गया, Cv पता है, तो आपको गामा मिलेगा, which is ratio of specific heats, and ratio of specific heats is very important when you talk about kinetic theory of gases. So let us see what is Myers relation. Now if you remember, मैंने आपको कल एक बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था. द आइडिया वाज दिस कि मेरे पास अगर एक कंटेनर है, लेट्स से आई हैव अ कंटेनर. ओके, इस कंटेनर में देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस. तो इस कंटेनर में देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस. इस कंटेनर का वॉल्यूम फिलहाल मैंने फिक्स रखा है. तो जब मैं इस कंटेनर को हीट सप्लाई करूंगा, व्हेन आई सप्लाई हीट टू दिस कंटेनर, ओके, तो ये जो हीट सप्लाइड है, लेट अस से dQ1, ये क्या करेगा? ये जो हीट सप्लाई किया है, ये टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, मतलब इट विल रेज द टेम्परेचर बाय लेट अस से dt. स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर इज dt. इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनका इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है. याद रखना, काइनेटिक थ्योरी में या थर्मोडायनामिक्स में the measure of internal energy of molecules of a gas is nothing but temperature. टेम्परेचर एक्चुअली आपको क्या बताता है? टेम्परेचर आपको ये बताता है कि इंटरनल एनर्जी कितना है गैस का. फॉर एग्जांपल, मेरे पास दो गैस है, एक का टेम्परेचर कम है, एक का टेम्परेचर ज्यादा है. जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब उस गैस के मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा है. दिस इज व्हाट इट मींस, राइट? सो हम यहाँ पे जो भी हीट सप्लाई करेंगे, वो हीट क्या करेगा? वो टेम्परेचर बढ़ाएगा, मतलब वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा. DE इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. अब कुछ बुक्स में DE की जगह पे DU लिखा होता है. इट इज द सेम थिंग. इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस यू डिनोट ईदर बाय U और बाय E, एक ही बात है. ओके, तो व्हाट इज हैपनिंग?
जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो, इट इज इंक्रीजिंग internal energy, but by definition and from 11th standard you should know, ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम का केस है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, तो बाय डेफिनेशन दिस इज सीबीडीटी, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज डीई, बट डीई इज सीबीडीटी। ओके, ये अभी अभी डिफाइन किया हम लोगों ने, जस्ट नाउ बी डिफाइंड। ओके, बाय डेफिनेशन ये स्पेसिफिक हीट, मतलब अभी इसको फिलहाल मोल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि लेट अस से आई हैव 1 मोल ऑफ अ गैस, मेरे पास 1 मोल ऑफ अ गैस है, मुझे उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, मैंने हीट सप्लाई कर दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो जो भी मैंने हीट सप्लाई किया वो क्या करेगा, वो टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो डी क्यू इज सीवीडीटी। ओके, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए मैंने सीवी लिखा है यहाँ पे। So this is very simple thing, very simple argument. You should know this. The amount of heat supplied is just increasing the internal energy, and since the volume is constant, you can write CVDT. Right? Let us say equation number 1. Okay. अब एक दूसरा केस लेते हैं हम लोग, and in that case, what happens is, ये जो दूसरा केस हम ले रहे हैं, यहाँ पे ये जो पिस्टन है ये मूवेबल पिस्टन है, सो यू हैव अ मूवेबल पिस्टन, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हो सकता है, मतलब वर्क डन हो सकता है। नाउ द अमाउंट ऑफ हीट दैट वी आर सप्लाइंग, हम यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे, लेट अस से dQ2, ये दो काम करेगा, ये एक तो इंटरनल एनर्जी मतलब टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज करेगा, दूसरा ये इस पिस्टन को ऊपर पुश करने का काम करेगा, मतलब वर्क डन करेगा, तो डीई प्लस डी डब्ल्यू, दिस इज नथिंग बट योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये आगे जाके आप सीखोगे, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड is partially used to increase the internal energy of the gas, and part of it is used to perform work. Okay, so this is something you will learn later. So this is amount of heat supplied, dE plus dW, but this is equation number 2, let us say, but from equation 1, and by the way, yes, एक चीज बताना रह गया, जैसे हमने इक्वेशन 1 में लिखा, बाय डेफिनेशन dQ1 इज CVDT, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था। सिमिलरली सेकेंड केस में हमने जो हीट सप्लाई किया वो कांस्टेंट प्रेशर पे किया, मतलब बाय डेफिनेशन dQ2 which is dE plus dW, this is CPDT, this is CPDT, मतलब heat that I am supplying is increasing the temperature at constant pressure, right? Okay, equation 3. Now from 1, 2 and 3, from equation number 1 to 3, dQ2 क्या है, dQ2 आपके पास है CPDT, dE क्या था इक्वेशन नंबर 1 से, CVDT, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इट वाज CVDT, it is CVDT plus dW, but what is dW if you remember, अगर आपको याद होगा, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम इज वर्क डन, तो वर्क डन का डेफिनेशन ही ये होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ओके, राइट, दिस इज वर्क डन। अब आप बोलोगे कहां से आया, हाँ, तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इज प्रेशर अपॉन एरिया, ऐसा करते हो ना, प्रेशर इनटू एरिया करते हैं हम लोग, राइट? ओके, प्रेशर इज फोर्स इनटू एरिया, यहाँ पे ध्यान देना, सो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया ऐसा आता है, तो फोर्स आता है प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू एक्स, एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज वर्क डन। ओके, तो ये है वर्क डन, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, अभी अभी हमने बोला, तो प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, तो ये आ गया आपका पीडीवी। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, बेसिक्स बहुत जरूरी होता है एट एवरी स्टेज, अगर आपको फिजिक्स को सिंपल करना है तो बेसिक्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो सीपीडीटी, दिस इज सीवीडीटी प्लस पीडब्ल्यूडी आपने लिखा है, या पीडीवी, ये पीडीवी कहां से आया,
You already know what is PdV. Pressure into change in volume is work done. ये work done है basically. Now, what you know is, but what you know is PV is equal to RT. मतलब nRT होता है, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया कि ये 1 मोल ऑफ गैस है, और क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस की बात हो रही थी इसलिए मैंने मोलार स्पेसिफिक हीट्स लिखा है, मैंने S नहीं लिखा यहाँ पे। S लिखता तो यूनिट मास ऑफ गैस होता। तो यू नो PV इज इक्वल टू nRT, बट हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो मैं डेरिवेटिव ले लूंगा दोनों साइड पे। सो PdV इज इक्वल टू RdT, क्योंकि R कांस्टेंट था इसलिए। अब यहाँ पे भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है डेरिवेटिव्स निकालने में, तो डोंट वरी इफ यू डोंट नो डेरिवेटिव्स, मैं बता देता हूँ। मैं बोलूंगा डिफरेंशिएटिंग मतलब टेकिंग डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएटिंग on both sides with respect to temperature. So d dt of PV equal to d dt of RT. तो P कांस्टेंट था तो dV by dt, R कांस्टेंट है तो dt by dt, डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज 1, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको मिल गया P dV by dt इक्वल टू R, मतलब आपको मिल गया P dV इज इक्वल टू R dt। तो ऐसा आता है वो। तो मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। तो यू शुड नो, जब आप PV इक्वल टू R लिख रहे हो, जब डिफरेंशिएट करोगे तो P dV इक्वल टू R dt आएगा। ये P dV की जगह पे R dt जाएगा ऊपर। Therefore, you will get Cp dt is equal to Cv dt plus R dt। अब दोनों साइड में dt है, राइट हैंड साइड में dt कॉमन निकाल के कैंसल आउट करो, तो Cp इक्वल टू Cv प्लस R। तो मैंने आपको कल बताया था कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा होता है कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। आ गया देखो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में आप कुछ ऐड कर रहे हो, इसका मतलब Cp जो है वो Cv से ज्यादा है। और ये ऑब्वियस था। क्यों ऑब्वियस था? क्योंकि जब आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था, जो भी हीट आप सप्लाई कर रहे थे वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी मतलब टेम्परेचर बढ़ाने का काम करता है। बट जब आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हो, वॉल्यूम को आप बढ़ने देते हो, वॉल्यूम फिक्स नहीं है, तो जो भी हीट आप सप्लाई कर रहे हो वो दो काम कर रहा है, वो टेम्परेचर भी बढ़ा रहा है, वो वर्क डन भी कर रहा है। तो ऑब्वियसली कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट लगने वाला है टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, ये ज्यादा रहेगा कंपेयर टू Cv। तो आपको ये जो मिल गया Cp माइनस Cv इक्वल टू R, इसको आप बोलते हो मायर्स रिलेशन। ओके, सो रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv is Myers relation. Okay, तो Cp minus Cv equal to R. Now मैं रिपीट करने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट इट। फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड। अब प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग नॉर्मली जो हीट सप्लाई करते हैं, मतलब ये जो मैंने बर्नर लगा दिया, मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं गैस को, तो नॉर्मली हीट सप्लाइड इज मेजर्ड इन कैलोरीज। एंड आप बोलते हो ना, मैंने आज इतना कैलोरी बर्न किया। ओके, सो कैलोरी इज यूनिट ऑफ हीट। तो जो आप हीट सप्लाई करते हो दैट इज इन कैलोरीज और किलो कैलोरीज। और जो वर्क डन होता है, मतलब ये जो पिस्टन ऊपर हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, वर्क डन हुआ, दैट इज इन जूल्स। तो दिस इज नॉट गुड, नॉट गुड इन द सेंस नॉट करेक्ट, क्योंकि एक इक्वेशन में आपके पास एक क्वांटिटी कैलोरीज में है, दूसरा क्वांटिटी जूल्स में है, वो सेम यूनिट्स में नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को करेक्शन मतलब एक फैक्टर से डिवाइड करना पड़ता है। तो व्हाट यू डू इज, तो नॉर्मली आप क्या करते हो, आप लिखते हो Cp माइनस Cv इक्वल टू R अपॉन J, वेयर J इज कॉल्ड एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये कहां से आया? ये सिर्फ इसके लिए आया क्योंकि हीट हमने सप्लाई की वो कैलोरीज में था, वर्क डन जो हुआ वो जूल में मेजर हो रहा है, इसलिए हमने डिवाइड बाय J कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये सिर्फ कन्वर्जन फैक्टर है, दैट्स इट।
Okay, this is mechanical equivalent of heat. This is only a conversion factor so that heat supplied and work done are in the same units, right? Now ये तो हमारा इक्वेशन आया in terms of molar specific heat capacities. Cp and Cv मतलब molar, right? बट मुझे अगर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में चाहिए तो क्या करेंगे? तो यू शुड नो, ये भी आपने 11th में सीखा है. इफ यू डोंट रिमेंबर इट्स ओके. यू शुड नो दैट मोलार स्पेसिफिक हीट, चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर हो चाहे वो कांस्टेंट वॉल्यूम हो, इज इक्वल टू मोलार मास. अब ये मोलार मास क्या होता है? वन मोल ऑफ अ गैस, यू नो वन मोल ऑफ अ गैस मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, उसका जितना भी मास होगा उसको बोलेंगे मोलार मास. क्योंकि क्या होता है, मान लो मैंने हाइड्रोजन गैस लिया 1 मोल, मैंने हीलियम गैस लिया 1 मोल, तो ऐसा नहीं होगा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास और 1 मोल ऑफ हीलियम का मास सेम है. इवन दो बोथ आर 1 मोल, यहाँ पे भी 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे भी 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन दोनों का मास अलग अलग है. तो मोलार स्पेसिफिक हीट इज मोलार मास, मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. तो दिस इज बाय डेफिनेशन ये मोलार स्पेसिफिक हीट है. मोलार स्पेसिफिक हीट, आई एम टेलिंग यू अगेन, C is equal to molar mass, not molecular mass, sorry, molar mass into S. ये पता होना चाहिए. Therefore, you now know molar specific heat at constant pressure is molar mass into principal specific heat at constant pressure. Let us say equation number 4. This is equation number 5. Similarly, molar specific heat at constant volume is equal to molar mass into principal specific heat at constant volume. तो ये equation 5 और 6 4 में substitute कर दो. Therefore, from equation number 4, 5 and 6, you will have m0 sp minus m0 sv equal to r by j. Therefore, m0 common, sp minus sv equal to r by j. Therefore, you will have sp minus sv equal to r upon m0j. तो ये भी मायर्स रिलेशन है, बट दिस इज इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. ओके, तो मैं आपको अब एक बार और बता देता हूं कि हमने एग्जैक्टली क्या किया और कैसे डिराइव किया. सो हाउ वी डिराइव्ड इट, एंड यू शुड नो. एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, देन इट इज नथिंग एट ऑल. लिखना सबको आता है. आई विल टेल यू हाउ टू राइट डाउन आंसर्स, ओके, बट दिस इज समथिंग यू नीड टू नो. कॉन्सेप्ट्स. तो जब आप मायर्स रिलेशन डिराइव करोगे, मान लो एग्जाम्पल में क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन मायर्स रिलेशन, लेट अस से, ओके, राइट. तो क्या करेंगे? यू नीड टू रिमेंबर स्टेप्स. सबसे पहले टॉक अबाउट द टाइप ऑफ गैस, द अमाउंट ऑफ गैस. तो आप बोलोगे कंसिडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, okay, at some pressure P, volume V and temperature T. Ab, if I am supplying heat to this gas keeping its volume constant, then the amount of heat supplied dq1 is only increasing the internal energy of the gas, right? Since the volume was constant, this dq1 is also equal to cv dt by definition. ये definition ही है basically. तो हमने जो हीट सप्लाई किया, that is just increasing internal energy, क्योंकि और कुछ हो ही नहीं सकता. कैसे होगा? वॉल्यूम तो फिक्स है, वर्क डन तो होगा नहीं. बट यू ऑल्सो नो दैट by definition this is cv dt.
Okay, therefore you have dE equal to cv dt, right? Then अब आप बोलो कि on the other hand, if the gas is heated at constant pressure, okay, pressure constant है, volume is allowed to change, right? The amount of heat supplied dq2 does two jobs, one to increase energy, other to perform work. But by definition, amount of heat supplied at constant pressure to 1 mole of a gas is CpdT. Therefore, you have CpdT equal to dE plus dW. But you know that dE from equation number 1 was CvdT and dW is PdV. But since this is ideal gas, तो PV is equal to nRT. लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू भी 1 होगी क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस की बात चल रही है. फिर आप जब डिफरेंशिएट करोगे आप बोलोगे therefore PdV is equal to RdT. Therefore you will have CpdT equal to CvdT plus RdT. Therefore you will have Cp plus Cp equal to Cv plus R. मतलब Cp minus Cv equal to R. ये आ गया मायर रिलेशन. बट एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, हीट सप्लाइड इज मेजर्ड इन कैलोरीज एंड द वर्क डन इज इन जूल्स. तो हमको दोनों साइड पे हीट सप्लाइड और वर्क डन दोनों के सेम यूनिट्स चाहिए. तो हम बोलेंगे लेट अस डिवाइड right hand side by J, which is called as mechanical equivalent of heat. We are introducing this J only because हमारे पास जो दो साइड से हीट सप्लाइड था और एक साइड पे वर्क डन था वो सेम यूनिट्स में नहीं था इसके लिए. राइट, गुड. सो दिस इज हाउ इट इज. नाउ ये तो आ गया मोलार स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में. अगर हमको प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में इक्वेशन चाहिए तो हमको पता होना चाहिए कि मोलार स्पेसिफिक हीट इज मोलार मास इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज मोलार मास इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और दिस इज इक्वल टू व्हाट यू हैव. ओके, गुड. अब ये दोनों आप इक्वेशन ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिल जाएगा m0sp माइनस m0sv इक्वल टू r बाई j. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा sp प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस कांस्टेंट वॉल्यूम एज r अपॉन m0j. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, राइट? तो अब कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेते हैं. तो जब न्यूमेरिकल्स पूछते हैं तो क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट के आगे प्रिंसिपल लिखा है या फिर मोलार लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. प्रिंसिपल बोला होगा तो ये इक्वेशन यूज होगा, और अगर आपको मोलार बोला होगा तो ये इक्वेशन यूज होगा. तो यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस. ओके, सो लेट अस note it down and one by one. So I will not use any diagrams now. It was just for the sake of your understanding. Okay, so this is simple, very simple task. तो अब क्या करोगे आप? सबसे पहले I told you to specify, to describe the system. Consider 1 mole of an ideal gas enclosed in a container. और एक चीज याद रखना, नो वन इज गोइंग टू चेक कि आपने एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक में से लिखा है, कहां से लिखा है. आपको सिर्फ सिस्टम को समझाते आना चाहिए. सो वी हैव 1 मोल ऑफ अ गैस, आइडियल गैस, एनक्लोज इन अ कंटेनर. अब कंटेनर के ऊपर एक लाइट फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन भी लगाना पड़ेगा. इन अ कंटेनर फिटेड विथ a light
frictionless and movable container. Movable container. Oh, sorry, movable piston, not container. Sorry, it was a human error. So humans are bound to make errors. Anyways, so now, as I told you, let P be the pressure of gas. Pressure of gas. V be the volume of gas, and T be its temperature. Temperature of gas. ओके यहां तक आपने अगर एक बार लिख दिया, नाउ व्हाट यू विल डू इज, अब आप बोलोगे अभी मैंने जैसे दो केसेस भी डिवाइड किया था वैसे ही यहां करेंगे. इफ द गैस इज हीटेड, if the gas is heated, okay, so that its temperature rises by dt, increases by dt, rises by dt. okay, तो मैं ऐसा बोलता हूं, if the gas is heated at a constant volume, that is better to say, is heated at constant volume, so that its temperature rises by dt, then the amount of heat supplied, the amount of heat supplied, कितना सप्लाई किया आपने, dq1, okay, the amount of heat supplied, that is small amount d, फिजिक्स में d मतलब small amount, by dq1, okay, amount of heat supplied dq1. अभी ये जो अमाउंट ऑफ हीट हमने सप्लाई किया, इसने क्या किया था, इसने सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाया था. सो इफ द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम सो दैट its temperature rises by dt, okay, the amount of heat supplied dq1 increases the internal energy. The amount of heat supplied, sorry for this silly mistakes, increases the internal energy of gas. Okay, by dE. Therefore, you can write down dq1 is equal to dE. But by definition, dq1 is cv dt. Therefore, you have dE is equal to cv dt, equation number 1. Okay. Now you can say if the gas is heated at constant pressure, okay, so now if the same gas at the same temperature, मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मान लो पहले 20 डिग्री पे गैस था, फिर मैंने हीट सप्लाई किया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, फिर 22 डिग्री हो गया मान लो. तो अब जब मैं नेक्स्ट टाइम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करूंगा तो जो इनिशियल टेम्परेचर था 20 डिग्री उसी पे करना पड़ेगा, आप 22 से आगे नहीं बढ़ा सकते. अब व्हाट आई एम सेइंग इज, जब पहली बार हमने dq1 हीट सप्लाई किया था, अगर तब इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री था, तो जब कांस्टेंट प्रेशर रख के आप हीट सप्लाई कर रहे हो तभी भी इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री ही होना चाहिए. So now if the same gas at the same temperature, ये important है, at the same temperature, मैं बेटर बोलूंगा at the same initial temperature, that is better.
Same initial temperature. So now if the same gas at the same initial temperature is heated at constant pressure, at constant pressure, okay, so that so that its temperature rises by dt, then the amount of heat supplied dq2 partially is partially used is partially used to increase the temperature, या फिर partially used to increase the internal energy, ऐसे ही बोल सकते हो, to increase the internal energy dE, and is partially used to perform work, is partially used to perform work. Perform work मतलब increase volume, is used to perform work, dW. So you can say therefore dq2 is equal to dE plus dW, but by definition this dq2 is cpdt. Therefore you will have cpdt is equal to dE plus dW. Okay, but from equation number 1 you have dE as लिखा था हमने cpdt, yes, plus dW is pdV. So आप mention कर दो since dE is cpdt from equation number 1 and dW is pdV. This is what you need to say, right? Good. So अब what you can say is also PV is equal to RT for 1 mole of a gas, for 1 mole of gas. Therefore, you can say PdV is equal to RdT. RdT. इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2. Okay, this is, let us say, 3. Therefore, from 2 and 3, you will have CPdt equal to CVdt plus Rdt. So therefore you will write down Cp is equal to Cv plus R, and therefore you can write down Cp minus Cv equal to R. This is what you have. तो ऐसा आपके पास आएगा. This is known as Myers relation. So this is what you need to know. So equation number 4 is known as Myers relation. So equation 4 is known as Myers relation. Okay, now as you know, as I told you कि यहाँ पे हमने assume किया था कि heat supplied and work done are in the same units. Okay, this equation is derived assuming heat supplied and mechanical work are in the same units. Okay, but generally
heat supplied is in calories या फिर किलो कैलोरीज. ओके, एंड मैकेनिकल वर्क इज इन जूल्स, एंड मैकेनिकल वर्क is in joule. Okay, right. Hence, equation 4 can be written as, अब ऐसा है, आप लिख सकते हो Cp minus Cv equal to R by J, equation number 5, where J is mechanical equivalent of heat. Mechanical equivalent of heat मतलब हम लोग कैलोरीज को हीट में, जूल में, कैलोरीज को जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं. दिस इज व्हाट इट मींस. ओके, आल्सो व्हाट यू नो इज मोलार स्पेसिफिक हीट. मोलार स्पेसिफिक हीट मैंने जैसे बताया आपको, आप इसको प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के टर्म में लिख सकते हो. मोलार स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू मोलार मास, मतलब हाउ मच इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. तो ये आ गया आपका C, ये है M0 molar mass, this is S. Okay, therefore you have Cp is equal to M0 Sp and of course and Cv is equal to M0 Sv. Let us say equation 6. Therefore from equation 5 and 6, मतलब 6 का जो हमारे पास Cp और Cv के formulas है वो हम 5 में substitute कर देंगे. Therefore, you will have M0Sp minus M0Sv equal to R by J. Therefore, you will have M0 common, Sp minus Sv, principal specific heat at constant pressure minus principal specific heat at constant volume equal to R by J. And therefore you will have Sp minus Sv equal to R upon molar mass, equation number 7. This is 7, yes, right. तो equation 7 जो है ये भी minus relation है, but in terms of principal specific heat. So equation 7 gives Myers relation in terms of principal specific heat. That's it. So this is how you are supposed to derive. अब ये जो equations है 5 and specifically 4, 5 and 7, ये हमारे लिए बहुत काम किया. So उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4. You will know कि why I am telling you this is important. कल आपको समझेगा क्योंकि कल एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होगा and you will be using Myers relation. You will be using this equation dq equal to cv dt, okay, de equal to cv dt, to find out gamma, which is ratio of specific heat at constant pressure to that of specific heat at constant volume. और gamma की वैल्यू से आप बता सकते हो डायरेक्टली गैस मोनोएटॉमिक है या डायएटॉमिक है, रिजिड है या नॉन रिजिड है. Okay, so we'll stop here for today and I'll continue with more in the next session.